Okay, everyone, I welcome you all in my today's class. We are going to discuss about performance management systems today. And in this class, we will discuss about what is performance appraisal, what are the methods to do performance evaluations in an organization, and things like this. We have studied some very important things before. Shared with all of you in my last lecture. I discussed and I shared with you the contents which we have covered so far. We discussed about the organizational culture, behavior, and vision and mission of organization. Then we moved to HR planning, and from HR planning, we started talking about recruitment, hiring, selection, talent acquisition, employer branding, and then we moved to training and development of employees. And after that, we discussed about compensation and benefits structure, grading structure, and the legal requirements and the organizational methodologies about compensation and benefits. After Salaries that, and tax calculation. exactly, and salary calculation, tax calculation, everything, overtime calculation. We discussed everything. And the last were the grading structures and salary ranges. Exactly. So I also shared with you the the concept of, for example, how can you make salary structure, or how can you make the grading structure for your organization for the very first time. Yes. If there is no grading Yes. structure before, then how would you start doing it from the beginning? Now the next part is how to evaluate performance of employees, performance of individuals. So this is our today's topic. So let me share with you my screen, and after that we can start discussing about it. Excuse me, sir. May I ask a question, sir? Please. सर ये जितनी भी आपने डिटेल बताई है फॉर द ईज एंड बेनिफिट ऑफ ऑल माय पार्टिसिपेंट्स जितने भी द कोलीग्स आर इन दिस ग्रुप कैन यू प्लीज शेयर द एंटायर स्नैपशॉट लाइक थोड़ा थोड़ा हर एक की ब्रीफिंग के साथ अगर एक प्रेजेंटेशन अगर आप हमें एंड में शेयर कर दीजिएगा जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द Sure, विजन sure, मिशन से लेकर तो sure. वो I एक हर एक के पास अपना एक ना एक पूरा एक मॉड्यूल आ जाएगा Gee, definitely it's a very good idea. डिफरेंट टाइम आपने प्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइम पे शेयर की थी तो वो कुछ मिस हो गई कोई आगे पीछे हो गई हैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑल कोलीग्स ओवर हियर हर एक के लिए वो एक सर वो एक पूरा एक पैक बन जाएगा आपकी तरफ से जी मैं पैक बना दूंगा जनाब, राइट सर थैंक यू जो आप कहेंगे बन जाएगा सर. राइट सर थैंक यू सर Okay जी. So today we are going to discuss how to design and implement performance management system. So this is the recap which we did in last class. I discussed everything. So we made all the bullets which we have discussed so far. So you can see it's a long list of things which we have covered in this course so far, Alhamdulillah. Then, so let's discuss from all of you, what is meaning of performance? Who would like to answer? What is performance? So what has expectation from the employee and what he has done in the last year. Okay, so performance means something which is expected from an employee. Okay, anybody else? Aisha. Sir, how a person exhibits him or herself, how a person carries himself, how a person shows himself, I mean, exhibit in a professional term. So अगर मैं अच्छे कपड़े पहन के आ रहा हूँ इसका मतलब है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है. No, sir, exhibit means it's also from your language, your how you carry yourself, your character, your education. It's all So shown in your performance. So okay, exhibition is not only about outfit or something, but it's also about how you portray yourself. so I'm just clarifying things because so that we can all have the same understanding. So the way I portray myself is performance, according to you. How you exhibit yourself in terms of every aspect in an organization. Okay. So anybody else? Inam sir.
Sir, I think it is output against the inputs. Output against the input. So we input something to implies and they give some output, right? No, employees put some inputs in the organization in their departments, and some outcomes generate against their inputs. Okay, so from my perspective, performance is whatever we perform or do in our organization is our performance. It should be related to our job, or you can say the task or activities which we perform on our job is our performance. And exactly as Mr. Hashman said in the beginning, that our management expects something from us. So that is the management expectation. And we, as an employees, we are responsible to meet the expectations of our management. So you can say performance is the kind of work or output at our job which our management expect from us. That is the performance, and it can be good and it can be bad. So if we are delivering or we are doing work at our office as per the expectation of our management, then we are performing good. But if we are not performing as per the expectations of our management, then maybe our performance is good, is bad, is not good, something like this. So it's the performance uh, which uh, which shows us the good and bad implies. If our productivity at job so is good, then we are performing good. But the main question is that how do we evaluate or how do we check the performance of individuals? So for that particular purpose, we have performance appraisal system. So performance appraisal system is the system which is used to check or evaluate or gauge the performance of employees in the organization. So you see, so first I discuss about the performance, what is performance, and then now I'm moving towards performance appraisal. So it's fine if we hire somebody, we want to hire him to perform or do some task or give some productivity. But ultimately we have to check it because we need to have a complete system which should be communicated to employees as well, that how are we going to appraise your performance, how are we going to check your performance. So the next thing, if we have performance and then we have performance appraisal, so what is performance management? So performance management, you can say, is the whole system which describes the process of performance appraisal. That in the upcoming slides, I will discuss in more detail what is difference between performance, performance appraisal, and performance management. So for now, just understand, try to think that performance management is a process, it's a complete process of managing performance of employees. Next thing is, when does it happen? It depends on the organizational policy and process. In some organizations, performance appraisal happens, let's say, twice a year. In some organizations, performance appraisal happens on monthly basis. In some organizations, it happens on annual basis. So it depends upon the organization structure, policies, processes, and things like that. So let's discuss about the other things. Let me describe in more detail about a performance appraisal. So, if we talk about performance appraisal, it is also called performance evaluation. So, performance appraisal is a formal system of review and evaluation of individual or team task performance. A critical point in the definition is that the word formal, because in actuality, managers should be reviewing an individual performance on a continuing basis. Because a question may come in your mind that performance evaluation we are always doing on daily basis. We are checking the performance of individual. We are checking if they are doing things
in a right way or in the wrong way, and we provide them feedback and we correct them, and we tell them you are doing right or you are doing wrong. But when we say performance appraisal is a formal process, so there is a time in every organization when formally everybody knows that now this is the time when our performance is being properly documented. The feedback will be given to us, and we will be getting to know what is the what would be the our outcome about our performance, and based on our performance we will get some kind of reward as well. If you want to implement a complete performance management system in your organization, so the performance appraisal is very, very critical and very important for the success of your performance management system. So let me give you an example. There was a guy, he entered in a bookshop and he requested, may I use your phone? The bookkeeper said, yes, sure, you can use my phone. And he called on a number and he said, uh, I passed through your home and I want to offer my services to cut the grass. The lady replied, no, thank you very much. I already have a person who is doing that job. But the guy insisted and he said, I can work on the half of the salary on which the guy is working. She said, no, thank you very much, but I'm satisfied with his work. He said, okay. In addition to your front lawn, I can also cut the side lawns and the back lawn in the same price, and I will not charge you extra. And please just give me this job. And she replied to that guy and said, gentleman, thank you very much, but I am very much happy uh, with the services of the guy who is already cutting the grass. So I'm sorry, I cannot take your services. He said, okay, fine. And then he turned off the phone call. The shopkeeper uh, then spoke to that guy. He said, I really liked your attitude. You were very much positive. So I want to offer you a job. The guy replied, thank you very much, but I'm sorry, I cannot take your offer. I'm already busy. But he said, you were jobless. You told me. You told on the phone. And you were very much eager to go for that job. He said, actually, I am the guy who is cutting her grass, but I just wanted to take the feedback from that lady if she is happy about my performance or not. So this is the feedback process uh, that the guy did. So this is how the same goes to organizations as well. That you have to re-examine on every year that how well are you performing. So for example, when our course will finish, I will give you a feedback form in which you can tell me how good was I, and how was my performance, how good I was at teaching and managing you all, things like that. So you can then give me rating, and based on that I will improve myself. Inam, yes, you are right. I think you have attended my training course on performance management, so you know the example. Am I right? Did I give this example before in the class? Yes, sir. अच्छा, इस क्लास में भी दिया मैंने एग्जांपल? No sir, not in this क्लास class. में नहीं, Not in this. क्लास में नहीं। ओ माय गॉड, ये कौन आ गया जी? रेहाना. हाँ, रेहाना है ने है, जब है आना तो हमें सबको है पता चले जाना. So, सर मैं कब से हूँ, सुन रही हूँ मैं. आप मैंने कोई बड़ी बात है, input आपने नहीं दिया. माशाल्लाह, आप और जब फारूक साहब 2 मिनट खामोश रहते हैं तो हमें मसला होना चाहिए. हम कहते हैं खैरियत है, तबीयत ठीक है, या कुछ ये खा रहे हैं या कोई और मसला है. सर आप इस तरह से बात करते हैं, समझ नहीं आता टॉन्ट कर रहे हैं या फिर आप जो है वो. देखें, जो उस्ताद तारीफ वो है। कभी भी टॉन्ट नहीं करते, वो तारीफ ही करते हैं. ये आपने याद, अगर तो आप मुझे अपना उस्ताद समझती हैं तो फिर आप समझ लें कि मैं टॉन्ट नहीं कर रहा. अगर आप मुझे अपना उस्ताद नहीं समझती तो फिर आप जो मर्जी समझ लें. नहीं सर, आप तो टीचर हैं. हाँ जी. तो फिजा का क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एनुअली होता है.
It depends, Filza, on the organization. कुछ organizations में it is annual basis, कुछ organizations में it is biannually. So ये इस तरह से होता है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उसकी एक और डेफिनेशन आ गई है. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द आइडेंटिफिकेशन. गौर करना है आप लोगों ने अल्फाज के ऊपर. नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो पहली चीज़ ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है. वर्ड शायर इसमें जोर दे रहा है, द पोएट इज स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड आइडेंटिफिकेशन. So identification means, first of all, you need to know the behaviors which lead performance in the organization. Second is the method. How are you going to, what are the tools which you are going to use in the organization to measure the performance? And third is the how are you going to manage? I mean, how are you going to give feedback? How are you going to set the goals, targets, and performance measurement criteria? So this is all management. So this whole process is called performance appraisal process, in which we first identify, then measure, and then we manage the performance of human resources working in our organization. Let me take you back to another slide. Can you see this slide? Everybody can Yes. see? ओके जी, ये मेरी बड़ी ऑल टाइम फेवरेट स्लाइड है. ये मैंने बड़ी जगहों पे यूज़ किया. मैं बिजनेस लेने के लिए भी यूज़ करता हूँ, और व्हेन एवर आई वांट टू टेक एनी कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट आई शो दिस स्लाइड. It's not a confidential document, it's open document. You can find it on internet as well. It is the vision of Coca-Cola for 2020. When I was working in Coca-Cola, I got this document. In which year do you think? I received this document in 2012, or I think 2011. So the top management shared this document with us, and they said, this is the vision of the organization. And by 2020, we have to do this. And to achieve this vision, we have some goals, some system priorities, and this is our metrics through which we will measure the performance. And on the bottom, you can see the culture. So we need to have a winning culture, and to create this culture, we need to live our values. We have to focus on the market. We have to work smart. We have to act like owners and be the brand. So these are the main pillars of the culture of the organization. At the bottom, everybody can see. Yes, sir. So you can see in this vision, they have vision about profit, about people, about portfolio, about partners, about planet, about productivity. So if you look at the local organizations, you will not be able to find such kind of document, and they don't have any direction. Their business is growing as per Allah Tawakkal. So सर मैं थोड़ा सा जी सर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा सर. सिंस most of our group colleagues all are working on the designations of manager HR, deputy manager HR, maybe someone is finance manager. This type of documents is generally used on the very top management level. I don't think so everyone have to see this document. For example, in your lectures, most of employees have gone through this type of paper, like balance scorecard or company's vision for another 5 or 10 years. So if you know, जिस तरह अभी आपने कहा कि कुछ कंपनीज में अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है, तो वो वाकई ऐसे ही हो रहा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी बात करूं किसी भी कंपनी की, कोई फ्लांग किसी टेक्सटाइल की, तो इस तरह का पेपर तो बना ही नहीं होगा वहां पे. तो क्या मैनेजर एचआर लेवल का एम्प्लॉय या सीनियर मैनेजर एचआर लेवल का एम्प्लॉय कैन डायरेक्ट टू द सीईओ और द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और व्हाटएवर द टॉप मैनेजमेंट कि जी हमें इस तरह बना के चलना है, तो हाउ वी कैन ऐड वैल्यू इन दिस, कि जी हमें अपना कोई वे फॉरवर्ड इस तरह का बनाना चाहिए. वी हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ रोड मैप जिसमें कंपनी की परफॉर्मेंस, वो तो फिर जूनियर लेवल को उस तरह तो एंटरटेन ही करेंगे वो. So, Mr. Farooq, first of all, this is not a manager level thing, it's top management thing. Secondly, it should come from top. The chief executive should have this vision. Chief executive or the departmental heads, they should have this vision. And I'm talking about when I speak to chief executives in Pakistan,
and most of the chief executive, they don't have such understanding. They don't have their 5 years plan, they don't have their 10 years plan. 10 years को दूर की बात है, वो 5 साल का प्लान नहीं है. 5 साल तो दूर की बात है, 3 साल का प्लान नहीं है. 3 साल तो दूर की बात, 1 साल का प्लान नहीं है. वो ऑपरेशनली चीज़ों को लेकर जा रहे होते हैं, और उसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जा रही है, वो फिर करते जाते हैं. वो अल्लाह ताला की ज़ात दे रही है, वो आ रहा है एकदम. फिर ऑर्गेनाइजेशन एक दिन आता है तो वो बंद कर देती है. अब ये जो ऐसी कोक जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पीछे डिकेड्स की हिस्ट्री है, Yes, ठीक है, sir. इट्स मोर देन 100-year old कंपनी नाउ. तो ये क्यों ऐसे है? Yes. व्हाई? बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैंडिंग ऑन सम strong pillars, Yes, sir. The systems has been established since long. and they Later, have the modern approaches of business as well. तो ये exactly. हर साल उनका हर एक सदी, हर एक डिकेड के बाद, आफ्टर एवरी डिकेड दे मेक अ प्लान फॉर नेक्स्ट डिकेड, एंड देन दे. My, तो हम लोग जो sir, है my ना, question, जी excuse me, sir, my question is कि how are group team managers or HR managers जी, मैं can उसी तरफ आ रहा हूँ. intervene in the business of the company? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ. Sir. अब चैलेंज क्या होता है कि इफ आई एम वर्किंग एट अ जूनियर लेवल पोजीशन, इवन इफ आई एम अ मैनेजर, बट आई एम एट अ जूनियर लेवल पोजीशन. So how can I make my top management realize this? So first of all, you have to talk to your departmental head that what is the plan of our department for next year, which we discuss in Right. HR planning phase. What is HR planning? In HR planning, we make next year plan. अब रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एचआर में क्या होता है, एचआर को लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं कि एचआर जो है ना वो सादा लफ्जों में मैं आप लोगों को कहूँ ना तो वो चवलियाँ मार रहे होते हैं. सॉरी टू से. हाउ दे डोंट प्लान फॉर थिंग्स. आपके पास रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट्स आ गई, आप रिक्रूटमेंट कर देते हैं. आपके पास ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट आ गई, आप ट्रेनिंग कर देते हैं. आपने सैलरी, एक रूटीन का मैटर है, उसमें 50% से ज़्यादा रोल जो है वो फाइनेंस का होता है, फाइनेंस ने सैलरी प्रोसेस करके दे दी. अब एचआर क्या कर रहा है फिर सारा दिन? So HR should come up with a proper plan. How are they going to build the culture? How are they going to measure the performance? How are they going to support the organization in their routine operational issues? How are they going to strategically help the organization? So HR, basically, HR plays very important role in this whole plan. This plan which you are saying, you can say HR is the main partner or the main uh, backbone behind this whole plan. So HR should come up and should go to chief executive and should say, if we want to have a good culture in our organization, we need to tell the direction to our people. And to tell direction to our people, we need to have our vision mission statements. And after that, we are going to break those vision and mission statement into our business goals. And those business goals should be communicated to our employees so that they should know कि वो किधर जा रहे हैं. अब when I was part of ये मैं जो 2010-11 की बात कर रहा हूँ, आई वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर HR इन कोका कोला. तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आया था, मैंने संभाल के रख लिया. ठीक है. फिर मैं क्या करता था कि मैं इस तरह की सारी चीज़ें ढूंढता रहता था कि जो मुझे डायरेक्शन दें. एंड वी यूज टू कम्युनिकेट टू ऑल एम्प्लॉइज. खैर वहाँ पर तो कल्चर था ना. अब ये कल्चर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो आपको टाइम लगेगा. यू हैव टू टॉक टू योर मैनेजमेंट, स्पेशली योर management. Then they can, if you are able to sell this thing to your management, they can going to talk to their management, and ultimately this can bring some kind of results. Otherwise अगर आप बहुत लो लेवल पोजीशन पर हैं तो आप लोग समझते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती. तो मैं तो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तबीयत का बंदा हूँ. मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव से भी टाइम लेके उसके कमरे में चला जाता हूँ, या अगर वो टाइम नहीं देता तो मैं तो ईमेल भी लिख देता हूँ. ईमेल पे नहीं दे रहा तो मैं कोई एक लेटर लिख के ना उसके कमरे में डाल देता हूँ, सर दिस इज अ लव लेटर फॉर यू. ठीक है. तो उसके ऊपर ऐसी कोई आइडियाज, कोई ऐसी चीज़ें यू कैन ऑलवेज मेंशन एंड यू कैन से दैट वी नीड अ प्लान. तो आपने फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को देखते हुए डिसीजन लेना था. बट अनफॉर्चुनेटली हम जो ऑपर होते हैं ना, हम लोग बहुत डरे सहमे. हम लोग कह रहे होते हैं बस बस यार अपनी जॉब गुजारा करो, हमें क्या ज़रूरत है पंगे लेने की, अप फ्रंट आने की, लोगों से बात करने की. ये ज़रा मुश्किल काम होता है. एम आई राइट? यस सर, ये यही चीजें जो आपने एंड में कही है सर.
दूसरा हम लोग ना सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, बजाय इसके कि हम सिस्टम को इम्प्रूव करें, हम सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। मैं ये आप लोगों को कहता हूँ, आप लोग तो मुझे बड़ी अच्छी क्लास मिली है, जो मेरे पास अगली क्लास है ना, उनके बहुत बुरे हालात हैं, हालांकि उसमें बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। मैंने उनके लिए सारा सिलेबस तब्दील किया है, जो सिलेबस मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को ज़रा मैंने सीनियर लेवल की, मैं छोटी छोटी चीज़ों में नहीं लेकर गया उनको, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों में ले गया हूँ। आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें बाईपास कर दी, मैं क्या चलो एडवांस लेवल की बातें करते हैं। खैर अभी भी मैं बहुत सारी एडवांस लेवल की बातें नहीं कर सकती, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। हम 2 माह से, 1 माह का कोर्स था ना आप लोगों का, अब देख लें कितना अरसा हो गया मैं कोर्स चलाते हुए। ठीक है, बीच में मैंने छुट्टियाँ की हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कितने कितने अरसे से हम लोग पढ़ रहे हैं, और हर क्लास जो है उसमें हमारा काम ख़त्म नहीं होता। ये हमारा कब ग्रुप क्रिएट हुआ था, ये देख लें जी। 22 दिसंबर को फर्स्ट क्लास। हाँ तो देख लें 22 दिसंबर को, इमेजिन कर लें, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी भी जाने वाला है, फरवरी आ गया। सर ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का तो हो ही जाता है वैसे ना। जी, हम्म। तो एनीवेज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिलेबस कितना ज़्यादा है फिर भी। अब उसमें जो है अभी आप लोगों को प्रोजेक्ट भी मिलना है, उसमें भी आप लोगों ने मेरा दिमाग खाना है, और एंड आई एम अवेलेबल इंशाल्लाह, यू कैन ईट माई ब्रेन एज मच एज यू कैन, आई हैव प्लेंटी ऑफ अवेलेबल। सो यू कैन लुक इन टू दैट, कि अब जब ये विजन या स्टेटमेंट मिल गई है, तो अब इट इज़ वेरी easier फॉर यू टू evaluate the performance of individuals and evaluate the performance of business। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं ज़रा, फिर मैं वापस आऊँगा इस स्लाइड पे, अगर किसी को इंटरेस्ट है ना इस स्लाइड में, आई कैन ऑलवेज कम बैक। सो अब डिफरेंस क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल में और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। सो दिस इज द डिफरेंस। So performance management is a complete system, and performance appraisal is one part of the system. The performance management, the purpose of performance management is to align employees' performance with organizational goals. Whereas in performance appraisal, our efforts are to determine the individual performance, not the overall organizational performance. Performance management defines the performance, whereas performance appraisal measures the performance. Performance management facilitates performance, whereas performance appraisal evaluates performance. Performance management encourages performance, whereas it is the feedback on performance. PMS is strategic, it is operational. PMS is futuristic, whereas performance appraisal is about past. Now, if you want to design a performance management system, so first of all, you have to align with the organizational values and business goals. And you have to ensure that your organization has good culture and people are highly engaged and satisfied at the work. And we have proper organizational processes, systems in place so that we can maximize the productivity of employees, teams, and organizations. Only then we are going to say that we have proper performance management system in our organization. यहाँ तक clear है? Is it fine so far? Zahra, how are you? Zahra का हालचाल पूछना जरूरी। Zahra, we can't hear you. आवाज नहीं आ रही आप। Sorry, we are unable to hear you. ओके जी, फिर हम आगे चलते हैं, ज़ारा का हालचाल बाद में पूछ लेते हैं। अच्छा जी, so what is the purpose of performance management actually? So there are three major purposes of performance management. One is the administrative purpose, second strategic, third developmental. So let's discuss each and every purpose in detail. The administrative purpose क्या है? Why we do performance appraisal? And what is developmental? What is strategic?
So let's discuss the developmental. So in development, we provide feedback to employee. We identify the weaknesses and strengths of individual employees. Then we recognize employees' performance. Then we assist employees in goals identification. And after that, we evaluate goals achievement, that if we have given you 3 goals, how much we have achieved. And we identify training needs of individuals. Then we identify the organizational training needs. Then we create organizational structure. Then we discuss if there are certain concerns of the employees, we discuss them and we try to resolve them. We try to improve communication, and it is a kind of forum for leaders where they help their employees in their business goals, in their job, in their job related issues. If we look at the initiative purpose of performance management, the first is we document the decisions about which we take about the employees of the organization. Second is we determine the promotion of candidates. I mean, based on the performance appraisal, we decide about the promotions of individuals. Then we determine the transfers and assignments of individuals based on performance appraisal. If there are poor performers, we identify them and we take necessary decisions about poor performance. And if we have to retain them or terminate them, or we have to lay off them, or we have to move them in other department, so we make all these kind of decisions based on performance management system. Then this is another way to validate the selection criteria. I mean, if we are hiring somebody and we made some selection of candidate, but that candidate is unable to perform, so performance appraisal system helps us to fill the gaps in the selection criteria of our organization. And it also helps us in meeting the legal requirements, because as per law we have to do performance appraisal, and we have to, if we want to terminate somebody based on his weak performance, so we have to inform him before that as well. So we design the and evaluate the training program need their progress. It helps us in personal planning. And then if we need to make the reward or compensation decisions, I mean the salary increments or decrements. So for this purpose, we again use performance management system. Clear है जी, developmental and initiative both are clear. Next the strategic benefit क्या performance management का. So the strategic benefit is that, or the purpose is that we link employees activities with organizational goals. So on top we should have the organization goals, and then we make the individual activities which everybody has to do. Then we define the skills, knowledge, and abilities necessary for implementing the organizational strategies. And then we develop a complete measurement system of giving feedback to employees. And it is also a good source of communication of corporate culture and value. ठीक है जी, आप सब लोग खामोश हैं, समझ नहीं आ रहा है या समझ बहुत ज़्यादा आ रहा है? मुझे बताया करें प्लीज़. मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। सर आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। और दसो शाह जी दसो, मैंने पता नहीं, मैं परेशान हो गया. रुतने हैं हमारी क्लास में? अच्छा शुक्र है मौजूद है, मैं समझा शायद है. ठीक है जी, नेक्स्ट चलूं? जी सर चलें। ओके. अच्छा, ये कंप्लीट एक साइकिल है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का. ठीक है, इसमें ये है कि ऑन टॉप वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड वैल्यूज, and then we plan the smart goals and objectives for individuals. Then individuals act on them, and then we track their performance, and then we review, and this process keeps on going. अब ये क्या है, गोल्स वगैरह क्या है, इसके लिए थोड़ा वेट करें, आगे चलते हैं, मैं उसमें बताता हूँ. अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं,
एम्प्लॉयर के लिए ये मैंने इसमें डिस्कस कर दिया डेवलपमेंटल इनिशिएटिव और स्ट्रेटेजिक में, ये एक ही बात है। आप लोगों को मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा दोबारा से, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो what are the benefits of performance appraisal to employees? So first of all, it helps employees to understand their job or their role better. For example, in performance appraisal, if there is any ambiguity, if for example, if you guys give me feedback about my performance, so if there was misunderstanding at my end, so you can tell me that no, the meaning of this is this, not what you are understanding. Then a manager can give feedback to his team members. So as a team member, I can get the opportunity to take feedback about my performance, about my overall productivity from my manager. Then if I need any training or development, I can communicate it to my manager and I can say that I need this training, I need this development opportunity, please help me. I can also discuss about the career development. I mean, what are the development or career opportunities available for me within the organization? I can discuss this with my manager. It is also a communication between employee and supervisor, and I can get coaching from my manager. I can get mentoring from my manager in this process, and then I can also make my personal development plan, and I can discuss with my manager as well. So these are, you can say, some major and key benefits to employees when it comes to performance appraisal. Now we have to discuss what are the options which we have available for performance appraisal. I mean, how do we measure the performance? ये तो सबको पता चल गया था ना कि मेरे को टूल चाहिए। अब उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं। द फर्स्ट टूल इज एसे बेस्ड अप्रेजल, सेकंड इज बिहेवियर एंकर बेस्ड सिस्टम, थर्ड इज गोल बेस्ड सिस्टम, फोर्थ इज 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम, फिफ्थ इज केपीआईज और बैलेंस स्कोर कार्ड सिस्टम, फोर्थ इज हाइब्रिड. Next is hybrid. In hybrid, we can have combination of two or three of the above. ठीक है। अब देखना ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें से कौन सा सिस्टम है। तो आप लोगों को सबकी डेफिनेशन पता है क्या क्या होता है? यस सर। ये किसको नहीं नो पता? सर, नो सर। और कौन नो नो वाला और कौन है? एक ही नो है या मल्टीपल नोज है? फिल्जा, सर एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, रेहाना, रेहाना चुप है, इसका पता नहीं क्या। यस सर। सर मैं इन सबको समझने की कोशिश करी, मुझे सिर्फ 360 का आता है, बाकी सब में अच्छा, मैं थोड़ी वीक हूँ। चक्रोतलैन, आपका क्या ख्याल है? मैंने आपको याद है समझना है? जी जी, मैं हाजिर। सर मुझे 360 का नहीं पता और गोल बेस्ड का भी नहीं पता। ठीक है, कुरोतलैन किधर है? लगता है कुरोतलैन चली गई। अच्छा जी, लेट्स start discussing one by one. On top we have essay based appraisal system. Essay based appraisal system होता है very simple appraisal system in which what we do actually, the manager can just on simple paper he can write in detail about the performance of his team members, that and he can describe in detail the achievements and the what kind of things he or she has done during this performance appraisal period. जैसे नोट नहीं लिखते आप लोग, जैसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसी तरह से एक सादा कागज के ऊपर आप लोग एक सिंपल पेपर के ऊपर आप प्लेन उसकी परफॉर्मेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, तो जिसको एसीआरस भी कहा जाता है। नहीं, एसीआर के लिए कोई भी सिस्टम यूज हो सकता है, बट एसीआर इज इन गवर्नमेंट सेक्टर, वो कहते हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, एसीआर का मतलब होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में पाकिस्तान में जो इन पब्लिक सेक्टर द सिस्टम विच इज यूज इज एसीआर, दे कॉल इट। हम जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को एक नाम भी दिया जाता है, ठीक है,
कुछ कहते हैं जी एम्प्लॉय कोचिंग सिस्टम, कुछ कहते हैं एम्प्लॉय फीडबैक सिस्टम, कुछ कहते हैं जी के एनुअल मोटिवेशन सिस्टम, समथिंग लाइक दिस। तो इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर में इसको ACR कहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो कॉम्बिनेशन यूज़ होता है वो SA प्लस बिहेवियर, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। इस तरह से लोगों उनकी इवैल्यूएशन होती है। मैंने फॉर्म्स देखे हुए हैं। जी सर। अब जो सेकंड सिस्टम है, ऐसे समझ गए आप लोग, कि कह लें कि एक सादा कागज़ जी सर। पर एक डिटेल लिख दी कि जी फारूक साहब, फारूक इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, इन दिस ईयर ही परफॉर्म्ड वेरी गुड, and we hope that he will also keep on performing very good in next year as well. So according to my understanding, he is, let's say, star performer of the organization, and I wish him best of luck in the next year as well. Thank you very much. नीचे मैंने साइन किए और मैंने मैनेजमेंट को पकड़ा दिया जी, ये दिस इज माय evaluation about Farouk performance for the year 2020. बिहेवियर एंकर सिस्टम, जिसको कहते हैं बार सिस्टम भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि हम लोग सर्टेन बिहेवियर्स को इवेलुएट करते हैं, सॉरी सर्टेन बिहेवियर्स को पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उन बिहेवियर्स के ऊपर हम लोगों की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें जो बड़ा कॉमन बिहेवियर होता है, पहला बिहेवियर होता है जॉब नॉलेज। तो एवरीबडी वी वांट टू सी कि उसको अपनी जॉब का पता क्या है। सेकंड जो बिहेवियर बहुत कॉमनली यूज होता है, दैट इज द पंचुअलिटी एंड रेगुलरिटी, कि एक बंदा कितना पंचुअल है, कितना रेगुलर आ रहा है, ऑन टाइम कितना आता है और कितना रेगुलर आता है। थर्ड जो इसमें बिहेवियर बड़ा ज़्यादा यूज किया जाता है वो होता है टीम वर्क, कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो उसका टीम वर्क कहता है कैसा है, हाउ वेल ही वर्क्स विद द अदर डिपार्टमेंट्स, अदर टीम मेंबर्स। फोर्थ बिहेवियर जो हम लोग बहुत कॉमनली इवेलुएट करते हैं, जो यूज किया जाता है इसके अंदर, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स विद अदर पीपल है वो कैसी है। फिर उसकी जो अगला बिहेवियर यूज किया जाता है वो होती है डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, कि वो लिखता कैसे, एक तो है ना वो बोलता कैसे है, लोगों के साथ कैसी बातचीत करता है, उसके बाद है कि वो इन राइटिंग वो कैसी कम्युनिकेशन होती है। फिर अगला जो बिहेवियर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होता है, अगर वो मैनेजरियल पोजीशन है तो उसकी टीम मैनेजमेंट स्किल्स, फिर कॉस्ट कटिंग उसकी स्किल्स, कॉस्ट सेविंग। तो ये डिफरेंट तरह के बिहेवियर्स होते हैं जिसके ऊपर लोगों की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड अ बिहेवियर और बार बेस्ड। सर ये, सर इनको ट्रेड्स एंड बिहेवियर्स भी कहते हैं ना, हाँ ट्रेड्स जी, एंड बिहेवियर्स ट्रेड का बेस्ड पार्ट सिस्टम होता भी है। कहते हैं। यस। ट्रेड्स को अदर वर्ड्स में बिहेवियर भी कहा जाता है, इसको कॉम्पिटेंसीज भी कहा जी। जाता है। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम, बिहेवियर एंकर बेस्ड सिस्टम और ट्रेड बेस्ड सिस्टम, इट इज सेम। तो आमतौर पर जो इसके लिए यूज होता है ना बिहेवियर एंकर सिस्टम, इसको कहते हैं बार, बिहेवियरल एंकर्स रेटिंग सिस्टम, बार सिस्टम। तो आप लोगों को अगर मैं लेट से अगर अभी दिखाता हूँ, मैं गूगल पे ले जाता हूँ, तो गूगल पे मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाता हूँ जी। मेरा गूगल नज़र आ रहा है आप लोगों को? नहीं सर। नो सर। चलो मुझे ज़रा गूगल पे जाना है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने बाहर लिखा है कि जी उसका हमें फॉर्म चाहिए, ठीक है। सो इसको हम लोग देख लेते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये सिस्टम हमें नज़र आ जाता है, इसके इमेजेस भी आ गए। अब ये किसी ने दिया हुआ है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है टैग? जी सर। सो यू कैन सी इसमें एक अटेंडेंस दी हुई है, बिहेवियर टुवर्ड्स सबॉर्डिनेट्स दिया हुआ है, सिंसेरिटी दी हुई है, डिपेंडेबिलिटी दी हुई है। सो ये सारे बिहेवियर्स हैं। इसके एग्जांपल आप लोगों को चले, मैं अपनी प्रेजेंटेशन में एग्जांपल मैंने दी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आप लोगों को समझ आ गया कि क्या होता है, ऐसे क्या और बार क्या है? यस सर। यस सर, मैं किया हुआ काम सर। इन होम, डू यू अंडरस्टैंड?
आप लोग समझ गए जी, बिहेवियर समझ आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? इल्हाम, डू यू अंडरस्टैंड? Nilofer, do you have any question about behavior system, behavior anchor system? No, sir. Okay, so should I ask a question? Yes, sir. What is difference between behavior anchor based system and essay based system? सर मैं बताऊं? आपका नाम नीलोफर है तो जरूर बताएं। ठीक है सर। सर उनको बताने दें सर, मेरा गला खराब हुआ हुआ है बहुत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। हम आपका कोई हम हंसेंगे नहीं, प्लीज बेफिक्र हैं। सर मुझे पेन हो रहा है बोलते हुए। ओके जी, सरोशा आप बताएं। थैंक यू सर। Okay, sir. Okay. Essay-based appraisal is basically detailed information about employee achievement or performance. जिसमें ये होता है कि you have a blank paper or page where you write down every point or every detail which the person have or has in the during the time जब उसका इवेल्यूएशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपके पास कोई सवालात नहीं होते, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, यू जस्ट हैव टू राइट इन डिटेल। लाइक जैसे हम ऐसे लिखते हैं वैसे एक पर्सन के बारे में यू हैव टू राइट इन डिटेल। और बिहेवियर में ये होता है कि you have different options like hard work or punctual, knowledge of different you have behavior or options or category, and then you evaluate accordingly. ओके बस। सो जब हमारे पास ऐसे बेस सिस्टम है, देन व्हाई डू वी यूज बिहेवियर एंकर बेस सिस्टम? रेहाना, सर इस बिहेवियर में हम रेटिंग देंगे उसको, हमने कुछ उसमें पॉइंट्स रखे होंगे, उनकी कैलकुलेशन की बेस पे हम करेंगे। ऐसे बेस तो सिंपल है ना, आपने कुछ भी लिख कर दे दिया, उसमें हम रेटिंग्स तो नहीं दे रहे होंगे उसको। तो बिहेवियर में हमने जो लेकिन सिस्टम जब पॉइंट, अप्रेजल तो दे रहा है ना, आपका काम तो हो रहा है ना, आपके पास टूल तो है ना, आप इतना इजी काम ही करना चाहिए ना, मुश्किल काम तो नहीं ना करना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम सर लेकिन सर सर हमने इसमें बिहेवियर में डिफरेंट हमने पॉइंट्स रखे होंगे ना, कि जैसे आपने अटेंडेंस बोला, फिर उसकी कम्युनिकेशन, उसका जो है वो टाइमलाइंस, ये सारी चीजें हमने उसके बिहेवियर्स में पॉइंट्स में लिखी होंगी, उसकी नहीं बेसिस ऐसे पे सर हम सारी चीजें ध्यान में रखकर ही जवाब देगा आपको, वो वैसे तो नहीं देगा। सर बिहेवियर में ये हो जाएगा ना कि बिहेवियर में कैटेगरीज आ जाती हैं ना, जिनको ओके पॉइंट्स कहते हैं। तो बिहेवियर में कैटेगरीज आ जाती हैं, उसमें एक जनरल हो जाएगा ना ऐसे बेस में, whereas बिहेवियर इज कैटेगोरिकल। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सर इनसे हैविंग कैटेगरीज? व्हाट सर इज द ये मिनट सर फरूक जो साहब, ऐसे बेस्ड होगा, फरूक साहब एक सर जो मिनट। ऐसे बेस्ड, ओके सर मैनेजर को मैनेजर की बेसिस पे एवेलुएट किया जाएगा, एक सबऑर्डिनेट है उसको उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली एवेलुएट किया नहीं जाएगा। ऐसे में भी तो मैनेजर ही होता है, वो कोई उसकी पोजीशन कम तो नहीं हो जाती। लेकिन सर उसका तो हम एक सिंपल फॉर्म है ना जो सब पे चला रहे हैं आप, सबका एक जैसा रखा हुआ है। अब इसमें तो डिफरेंस हो जाएगा ना, एक अच्छा मैनेजर आप है, लोग फिर मुझे ये एक बताएं, जो मिडिल आप लोग मैनेजमेंट है। आपस में जो इसकी द एक्सप्लेनेशन which you guys are giving, do you think it is enough to make any decision? If you go to your management and if they ask you okay, which system should we use, if you give the same statement to your management, do you think they will be agreeing with you? yes sir, behaviors should be more appropriate because you are working with the multiple employees. अगर आप मैनेजर हैं तो देयर आर अराउंड 3 or 4 सबऑर्डिनेट्स वर्किंग विद यू, तो सिंपल आप उनको ऐसे बेस के ऊपर नहीं करेंगे। यू हैव ईच एंड एवरी ट्रेड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ द डिफरेंट एम्प्लॉइज। एक फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ रेहाना काम कर रही थी तो शी कम्युनिकेट्स वेरी वेल, तो जो ट्रेड्स होएगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मैं थैंक उसमें यू लिखूंगा फरूक साहब। अच्छा चले मुझे बता तो लेने दें। तो सर जो डिफरेंट ट्रेड्स एंड बिहेवियर्स हैं वो ज्यादा कैटेगराइज और एक बंदे की डिटेल्ड
उसकी इवेलुएट करेंगे परफॉर्मेंस व्हाट ही हैज डन और देखिए हाउ वाज एट द ही एंड ऑफ द डे अगर आपके पास 200 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, या सर 500 एम्प्लॉइज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और 10 ओके मैनेजर्स सर हैं जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है, उनके लिए कौन सी चीज़ इजी है? सर बिहेवियर ही सर होगी आई बिकॉज जितना अच्छा वो सारा कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम हो जाएगा और फिजिकल भी बुला कंप्यूटराइज के को भी अप्रेजल छोड़ दें होती है आप, कंप्यूटराइज को छोड़ दें आप, ऐसे भी कंप्यूटराइज हो जाता है, सिंपल आप खोलेंगे सर आई उधर, गेस बिहेवियर जो है वो बहुत नेचुरल होता है। तो ऐसे नेचुरल तो नहीं सर होता, देखिए ऐसे तो हम सर बचपन से माइट लिख बी रहे हैं, हम तो बड़ा इजी है हमारे लिए। सर माइट बी इन ऐसे हमारा बेस्ड हेड टाइप अप्रेजल बहुत में नेचुरल एक्ट कर रहा होता है, वो बनावटी रीस नहीं होती ना उसमें। लेकिन तो सर देखिए सबसे पहले एक एम्प्लॉय ने अगर बिहेवियर बेस्ड होगा तो सबसे पहले एम्प्लॉय अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहा होता है, उसके बाद वो अपने लाइन मैनेजर को दे रहा होता है, तो लाइन ऐसे मैनेजर में भी कैन वो सेल्फ चेंज असेसमेंट कर लेता है, वो कहता है जी ठीक है पहले तुम लिख कर लाओ अपने बारे में, वो उसने सर देखा बिल्कुल लिख के लाएगा वो that there are chance to miss some points in essay Yes. based appraisal. एक एम्प्लॉय पहले अपनी सेल्फ असेसमेंट आप करेगा देन आप ही जरा ना, देन आप ही लोग लाइन मैनेजर करेगा सही तरफ जा रहे हैं, सरोशा कैरी ऑन, आगे बढ़े आगे बढ़ाएं Sir, sir, essay में ये you might miss out some points, ओके। but in appraisal or in behavior you have to So the first difference is keep that you observing. may miss few things in essay based system, but in behavior there is less opportunity to missing something. The second or the biggest difference, which is the biggest difference between essay and behavior, in essay system we cannot identify the weaknesses or the poor or the gray areas of individual, but in behaviors, as we have the categories, let's say we have 5 categories, so we can easily say कि जी किस एरिया में वो बंदा वीक है, कम्युनिकेशन में वीक है, अटेंडेंस में वीक है, प्रोडक्टिविटी में वीक है, जॉब नॉलेज में वीक है, और कितना वीक है। कितना वीक है, तो it is very easier to do when it comes to behaviors, but when it comes to go वेरी राइट essays, मैं ये चाह रहा था कि आप लोग ना मुझे सही बात बताएं, ये आप लोग घुमा रहे थे मुझे जी वो ऐसे ऐसे हो जाता है, बिहेवियर ऐसे, घुमाए नहीं प्लीज, मैं पहले बहुत घुमा हुआ हूँ, ठीक है, तो राइट राइट ठीक है, तो लेट्स टॉक लॉजिकल. So in essay based system it is not easier, it is impossible कि आप लोगों को जो है ना उनकी वीकनेसेस और उनकी स्ट्रेंथ्स को आप इजीली गेज कर सकें, नंबर 1. नंबर 2, इन ऐसे सिस्टम देयर इज अ लॉट ऑफ बायसनेस. मैनेजर ने लिखा कि जी माय टीम मेंबर इज एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट है, बट व्हेन इट कम्स टू बिहेवियर, तो बिहेवियर में चूंकि यू हैव सर्टेन पैरामीटर्स, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ मैनेजर टू शो बायसनेस, कि वो उसने अगर अंडर रेटिंग करनी है या ओवर रेटिंग करनी है तो वो उसको डिफिकल्ट होता है उसको इसको जस्टिफाई करना. सो इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ, देयर रिमेन्स बायसनेस रहती है उसके अंदर, but it reduces the level of biasness which a manager does in when it comes to essay based system. Okay. So, sir, I mean, I have something to say. So this is why I said कि categories आ जाती है ना. तो when it's categorized, so it's very not only easy, but it's very clear कि बंदा किस aspect में किस तरह behave कर रहा है. तो वो जो है ना इसलिए मैं कह रही थी कि इसका ज्यादा फायदा है in terms of the behaviors जब Exactly. categorize हो जाता Agreed. है. It's unbiased, basically unbiased. Not unbiased. It biasness रहती है. आपने अगर कोई बंदा उसका स्कोर 3 बनता है आप उसको 5 दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो वो बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी तरह की हैं बिल्कुल माठी, वो 2 नंबर बनते हैं, लेकिन मैनेजर कहता है जी वो 5 नंबर दे रहा है, वो 4 नंबर दे रहा है उसको, ठीक है. बायसनेस विल रिमेन देयर बट लेवल कम हो जाएगा, उसको चूंकि मैनेजर को जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन बार बेस्ड सिस्टम अगेंस्ट एवरी बिहेवियर यू गिव नंबर. सो मैंने कौन से आपको बिहेवियर्स बताए हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. नंबर 1 जॉब नॉलेज, नंबर 2 पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी, नंबर 3 ये जैसे डिपेंडेबिलिटी थी, ट्रस्ट था कि एक बंदे को आप जॉब देके ट्रस्ट देकर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये काम कर देगा. एक बंदे के ऊपर आप ट्रस्ट ही नहीं करते, आप कहते हैं यार इसका कोई पता नहीं, लास्ट मिनट में ये धोखा दे, होता है ना, ऐसे टीम मेंबर्स होते हैं ना आपके, ये नहीं होते? बिल्कुल. कुरतनैन, डू यू एग्री? पता नहीं कुरतनैन आज नाराज तो नहीं, कोई गलती होगी माफ फरमा दें.
ओके, थैंक यू वेरी मच। सो बिहेवियरल एंकर बेस्ड सिस्टम जो होता है उसमें फिर आपके पास बायसनेस की अपॉर्चुनिटी कम होती है। सेकंड, आपको इजी होता है कि वीकनेसेस या स्ट्रेंथ्स लोगों की आइडेंटिफाई करना, उसकी ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करना इजी होता है। अगर एक बंदा कम्युनिकेशन स्किल्स में मिसिंग है तो आप डायरेक्ट नज़र आ रहा है, उसके 2 स्कोर हैं, तो आप कहते हैं यार इसको कम्युनिकेशन की क्लास में भेजो ताकि ये अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी। Yes. अच्छा जी, अब जब हमारे पास बिहेवियर बेस्ड सिस्टम है, ऐसे बेस्ड सिस्टम है, तो फिर गोल बेस्ड सिस्टम क्या है? अब बिहेवियर्स में होता क्या है कि लोग अपना बिहेवियर तो बहुत अच्छा शो करते हैं, दे कैन शो वेरी गुड बिहेवियर, दे कैन शो वेरी पॉजिटिव बिहेवियर, बट एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं है। वी हैव अ पर्सन who, let's say, who has very good knowledge about job, who has very good communication skill, who always comes on job on time, leaves on time, he even sits late, he has very good spoken skills as well, we can depend on him, but still there are no business results. So that's why we got this system, management by objectives, in which you give goals to employees, and you give the timeline as well, that they have to complete their goals within certain period, certain time, and then within that period the employees are requested or required to complete their goals. So this is goal based system. उसमें क्या होता है कि गोल बेस्ड सिस्टम में चूंकि गोल्स के ऊपर सारा काम हो रहा होता है, तो देन देर इज अगेन जो बायसनेस का लेवल होता है वो मजीद कम हो जाता है। ठीक है। सो व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर एंड गोल बेस्ड सिस्टम? हु इज गोइंग टू टेल मी? आई नीड अ वॉलंटियर अदर देन सर फरूख साहब। इनफैक्ट ओके सर। आपको फरूख साहब बाद में। जी राइट सर, राइट। एनीबडी एल्स? जहरा? So do we have someone volunteer other than Zahra or Farooq Saab who would like to ponder some light on the difference between behavior based system and goal based system? इनाम? हाँ जी, इनाम से पूछते हैं, इनाम ने तो ट्रेनिंग भी ली हुई है। मिस्टर इनाम, इनाम भाग तो नहीं गया? हाँ भाग गया इनाम बगैर बताए, नहीं नजर आ रहा। ओके फरूख साहब आप बताएं जी, बाकी कोई नहीं बताना चाहता। सर इनफैक्ट जो बिहेवियर्स एंकर बेस्ड हैं, these are the traits and behaviors of an individual employee which you can calculate on quarterly or semi-annually or annual basis. But the goals and MBOs basically management by objectives, जिसमें you have to define the KPIs for a quarter or semi-annual or annual basis, and you have to evaluate कि what target actually he has achieved. Like खाली behavior तो नहीं देखना कि जो टाइम पे आ रहा था, लेकिन अगर वो टाइम पे आ रहा है टाइम पे going and he is doing nothing, तो वो तो हमें नहीं चाहिए. We need a person who is fulfilling their goals and objectives, which are in the form of we can evaluate through KPIs or sort of things at the end of a quarter or semi-annual or yearly basis. KPI is another thing. Don't mix KPIs and goals. जी, Whatever the targets assigned to him, sir. जी, the goals assigned. Yes, sir. So which system do you guys think is best so far? ऐसे, बिहेवियर और गोल्स? सर ये डिफरेंस जो है ये तो मतलब बाय वर्ड ही समझ में आ रहा है ना कि आपने गोल असाइन किया, अगर वो उस गोल्स को मीट कर रहे हैं तो देन उसके अकॉर्डिंगली आप उसका वो करेंगे अप्रेजल। बट इसकी कोई एग्जांपल दे दें किस तरह से कौन से गोल सेट करेंगे आप एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से? एचआर का पर्सन है उसका क्या गोल सेट होगा, फिर उसको प्रेस करेंगे। नंबर 1 उसका गोल हो गया कि उसने जो वैकेंसीज हैं वो विद इन 10 days फिल करनी है। एवरी जॉब जो आती है उसके पास उसने 10,
नंबर 2 उसका गोल है कि उसने जो है एम्प्लॉय रिटेंशन रेट जो है ना उसको इम्प्रूव करना है। नंबर 3 उसका गोल आ गया कि जी उसके जो है ना सैलरी प्रोसेसिंग का जो टाइम है उसको रिड्यूस करना है। नंबर 4 है सर ये कि केपीआईज में नहीं आएगा, ये केपीआईज नहीं होंगे, की ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। केपीएस एक अलहदा चीज़ है, अभी मैं उसको डिस्कस करता हूँ। अभी ये समझे कि ये गोल्स हैं, ठीक है। नंबर 3 ये है कि उसने जो बिजनेस प्लान है उसको बनाना है, वो उसका एक गोल हो गया। एचआर प्लान उसने बनाना है, एक गोल उसका हो गया, ठीक है। नंबर 4 ये है कि उसने जो बजट है एचआर का वो बनाना है। नंबर 5 उसका गोल हो गया जी, उसने 4 उसने पार्टिसिपेट करना है जॉब फेयर्स के अंदर एम्प्लॉय ब्रांडिंग के लिए, ठीक है। ये उसका सर ट्रेनिंग कंडक्ट कराना इज वेरी हाँ इंपॉर्टेंट जी, सर। उसने 10 ट्रेनिंग्स कंडक्ट करानी है, ठीक है। HRIS को लॉन्च करना, या अगर हाँ नहीं जी, बना हुआ या बना हुआ तो और उसको पॉलिसीज वो करना, प्रोसीजर्स को डेवलप करना है। पॉलिसीज बनाना। यस सर। पॉलिसीज अगर नहीं बनी हुई, अगर बनी हुई हैं तो उनको रिवाइज करना है, ठीक है, उसमें अपडेट हो गई हैं। तो ये गोल्स हो सकते हैं एचआर के। सर इन ए क्वार्टर आपके एंगेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, वो देख लेना कि आपने कितने किए हाँ थे, जी, कितने कितने नहीं हुए। एंगेजमेंट एक्टिविटीज कंडक्ट करना, ठीक है। लेट्स से आप कहते हैं जी क्वार्टरली बेसिस पे एटलीस्ट कंडक्ट 3 एंगेजमेंट एक्टिविटीज, वो कंडक्ट करनी है। क्रिकेट मैच करा दिया है, मैंगो डिनर करा दिया है, ठीक है, ट्रिप ले गए हैं, समथिंग लाइक दिस। सर एनुअल डिनर्स होते हैं, वो भी HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। जी एनुअल डिनर हो गया, 14 अगस्त हो गई, ठीक है, ईद मिलन हो गया, यस। वो फिर सेपरेट चीज़ है। सो ये गोल्स मैंने आपको दे दिए है ना, आप बताएं आप एचआर के गोल। सर समझ आ गया। सर इफ यू अलाउ मी आई कैन सेंड इन द ग्रुप जो मोबिलिंग के मेरे पास बने हुए हैं, फ्रॉम द डायरेक्टर टिल स्पेशलिस्ट 1, 6 हायरार्कीज हैं जिनके बने हुए हैं, क्या? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड KPIs। हाँ, वो लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम ग्रुप फारूक साहब ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप में जी मैं शेयर कर दे रहे, यू कैन शेयर इन ग्रुप, बट राइट नाउ वी आर बिल्डिंग एन अंडरस्टैंडिंग। जी यस सर। अब मैं आप लोगों से यही तो पूछ रहा हूँ कि इन 3 में से कौन सा सिस्टम आप लोग चूज करेंगे? सर इनफैक्ट रेहाना टैलेंटेड है, वो प्रैक्टिकली काम कर रही है, उनको समझ आ जाएगी एक दफा उनको रिटर्न मिलेगा तो। Sir, I think behavior-based system would be the best. Anchors-based system would be good for an ओके organization. ओके, Reason सर being, द कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर एंड गोल बेस्ड। एक मिनट ठहरे, फरूख साहब जरा ना वो आयशा को कंप्लीट कर लेने दें, फिर आपकी भी राय, सब बारी बारी राय दें, सबको राय देनी पड़ेगी अब। एवरीबडी हैज टू टेल विच सिस्टम इज गुड फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम आयशा। sir, I think personally, जितना मुझे समझ आ सका है, I think behavioral anchor-based system would be one of the good, but generally overall, I think hybrid system use करना चाहिए, a combination of 2 or more systems, which I think जो हम आगे अगर पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा कि इस 360 क्या है, KPI क्या है. In my opinion, अगर एक के साथ जाना हो तो behavioral is good, बिकॉज बिहेवियर में जो एस्पेक्ट्स काउंट होते हैं उसमें सिंसेरिटी भी होती है. सिंसेरिटी में सिर्फ एक चीज काउंट नहीं होगी, देयर बी मेनी थिंग दैट वुड बी काउंटेड इन सिंसेरिटी. अगर सिंसेरिटी अगर एक एस्पेक्ट है, how sincere you are with the organization, how well you are carrying out your duties, how well you are coming and going, giving in terms of the input. लेकिन अगर हम सिर्फ गोल्स पे चले जाएंगे तो what about the other aspects that are important to monitor for an employee? So this is what I think. And secondly, I think a hybrid system would be a very good system कि आप जहाँ पे एक पे rely ना करें, more than one पे rely करें. So this is my opinion. मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी, यानी कि बाकी दोनों सिस्टम्स का भी, ताकि आप लोग उसको देखने, आपको ये ना हो कि जी हमें इसका पता नहीं था, तो इसलिए भी हम बता नहीं सकते कि कौन सा सिस्टम हमारे लिए बेहतर हो सकता है। देखिए जो नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज़ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी ये सिस्टम चूज़ करें ऊपर, चाहे ऐसे करें, बिहेवियर करें, गोल्स करें, इनमें से किसी एक सिस्टम को आपने चूज़ करना है और उस सिस्टम के ऊपर जो है ना एक से ज़्यादा लोगों की फीडबैक लेनी है। सो फीडबैक मीन्स, so 360 degree feedback means कि you get feedback about individual performance from his seniors, from juniors and from peers. So this is 360 कि आपके जो
सीनियर में से कौन लोग आ रहे हैं? आपका मैनेजर और उसके अलावा कोई एक और पर्सन, एक या दो और पर्सन। फिर आपके पीयर्स में जो आपके बराबर में जो आपके कुलीग्स हैं वो जो काम करते हैं उनके बारे में आपकी फीडबैक ली जाएगी। और आपके जो जूनियर्स हैं, सो यू टेक फीडबैक अबाउट योर परफॉर्मेंस फ्रॉम एवरीवन, सो दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री फीडबैक। अब ये 360 डिग्री फीडबैक के ऊपर आपने इनमें से कोई एक सिस्टम चूज करना है, ऐसे बेस्ड बिहेवियर या गोल्स। वो जो है उसके बारे में आप लेट से आपने बिहेवियर चूज किया तो बिहेवियर्स के ऊपर मैनेजर से भी फीडबैक लेंगे, मैनेजर का कोई अलावा कोई और सीनियर पर्सन उससे फीडबैक लेंगे, आपके जो कोलीग्स हैं उनसे फीडबैक लेंगे कि वो क्या कहते हैं, वो रेटिंग करेंगे। फिर आपके जो जूनियर्स हैं उनसे रेटिंग करवाई जाएगी। तो या आपसे आपके जूनियर्स या आपसे जो जूनियर लेवल पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन दे डू नॉट रिपोर्ट यू, so you take feedback from everyone, so this is called 360 degree feedback system. But in 360 degree feedback system you have to choose any of them system, इनमें से कोई एक ही चूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस स्कोर कार्ड या केपीआईज है, केपीआईज मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए रिकमेंड नहीं करता। केपीआईज इज गुड फॉर departmental performance evaluation, not individuals. And in balance scorecard, basically it's a system in which we have 4 pillars: finance, people, and there are 2 more pillars about which we collect information, but it is not applicable to everyone. So बैलेंस स्कोर कार्ड कह लें कि आउटडेटेड सिस्टम हो गया। और अनफॉर्चुनेट है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बैलेंस स्कोर कार्ड सिस्टम जो है ये बैंकों के ऊपर लागू कर दिया कि उनके अंदर उन्होंने कहा जी कि आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो बैलेंस स्कोर कार्ड के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप हर फैक्टर को एक स्कोर दे देते हैं और उनका स्कोर कार्ड बनता रहता है कि मंथली बेसिस पर कि उसने हर एरिया में आपने नेट से 5, वही कह लें कि बिहेवियर्स हैं, लेकिन बिहेवियर्स की जो कैटेगरी है वो रेलेवेंट टू फाइनेंस, रेलेवेंट टू ऑपरेशंस, रेलेवेंट टू स्ट्रेटजीज, ये 3-4 एरिया से रेलेवेंट होती हैं और उसके ऊपर स्कोरिंग हो रही होती है कि आपने कितना स्कोर उसमें हासिल किया। ओके, गॉट इट? यू मीन पर्टिकुलर 4 एरियाज हैं जिनके ऊपर केपीआईज बनते हैं और बैलेंस स्कोर कार्ड बनता है? वो बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर वो 4 एरिया सर जो है ना वो पॉइंट्स बनते हैं। जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। अगर जैसे हम हाइब्रिड चूज करते हैं तो उसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम गोल बेस्ड भी ले लें और बिहेवियरल भी ले लें, ऐसे भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन क्यों होगा वो? नहीं सर, बिकॉज हाइब्रिड के आगे लिखा हुआ है ना कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिस्टम्स, तो दैट वुड बी कि हम ऊपर में से कोई से भी ले सकते हैं 2 सिस्टम्स, राइट? इसका यही मतलब है? यस, लेकिन वो Okay, sir. क्यों लेंगे ये भी तो बताना है ना आपने साहब। सर इट वुड बी गुड अगर अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक पे रिलाई नहीं करती, अगर वो हैवी अप्रेजल करते है अपने बंदे का, लाइक जो भी उसका एम्प्लॉय है, तो आई गेस दैट बी गुड। कैसे गुड? वही तो मैंने जानना है। सर सर कैसे गुड? जी जी आयशा बोलो। नहीं नहीं, ये कह हाना रहे पहले हैं, आप बोले, पहले आप नहीं बोले। मैं मुझे एक्चुअली 5 पॉइंट जो है वो मजीद समझना है, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ थोड़ा, मुझे समझ नहीं आया सही से। क्या समझ नहीं आया? सर आपने लिखा है केपीआईज और बैलेंस स्कोर कार्ड ना? कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये सिस्टम यूज करती हैं लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, because KPIs is used for departmental performance evaluation, not individual performance appraisal. So this is individual performance. Over here we are evaluating लेकिन individual. कंपनीज इंडिविजुअल करती है ना सर, केपीआईज को इंडिविजुअल बेसिस पे ले हाँ तो जाती वो है। गलत है, उसकी रीजन मैं बताता हूँ अभी। ओके बैलेंस स्कोर कार्ड मैंने कहा कि आउटडेटेड सिस्टम है, इसमें भी इस अनदर वे ऑफ KPIs यू कैन से। ठीक है। तो आप लोग जस्ट इमेजिन करेंगे ये KPIs और बैलेंस स्कोर कार्ड नहीं है, अब आप लोगों ने कौन सा सिस्टम इंप्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? फिल्जा, for example, you have ABC organization, which system you like most and why? Sir, hybrid. I go with hybrid because इसमें आप behavioral भी count करते हैं, आप goals based भी कर सकते हैं, तो evaluation आप दोनों basis पे
कर सकते हैं। आपके पास कैटेगरीज भी आ जाती हैं, फिर आपके पास ये भी आ जाता है कि आपका एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय किस तरीके से कौन सा टास्क टाइम पे कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें आ जाती नहीं तो वो जब आपने गोल्स नहीं है तो गोल्स में टाइम भी आ गया, हर चीज़ आ गई, फिर आपको क्या फ़ायदा उसका? हैं। सिर्फ बिहेवियरल भी तो है ना, तो या आई गो विद। मुझे प्रॉपर रीज़न दें। फायजा, बाकी सब लोग प्लीज कीप योर आंसर रेडी, आई एम कमिंग वन बाय वन टू एवरीवन। फायजा, विच सिस्टम you like and why? Sir, hybrid system according to me. Why? Because किसी एक सिस्टम, अगर आप कोई एक सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें कुछ में लैग कर जाती है, सो इट्स बेटर कि For example, what does it सॉरी सर, for example, what could अगर be 360 फीडबैक सिस्टम लेते हैं, सो दैट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस, वो इट टेक्स अबाउट मंथ, लाइक 4 months 6 months, सो इससे अच्छा है कि a combination of I'm sorry sir, it flew away, combination of two systems. सो बात तो वही होगी ना, 360 डिग्री फीडबैक आप टाइम लेगा। अब आपने गोल्स और बिहेवियर दोनों यूज कर लिया, बिहेवियर पर भी असेसमेंट हो रही है, गोल्स पर भी असेसमेंट हो रही है, तो इसको ना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स से। सर हाइब्रिड में आपके पेयर्स के भी पेयर्स और मैनेजर्स और ये सारे भी तो इवैल्यूएशंस आ जाती हैं ना, फीडबैक आ जाते हैं। हाइब्रिड में हाँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिस्टम, so you we can also go with 360 degree feedback system in it. okay, so you say we can use 360 and then goals and behavior, three systems together. Yes. माशाल्लाह, ठीक है। Sir, personally, I think a 360 feedback system is a very, very biased system, I would say. That I would never use for an organization going for a 360 feedback system. It would be very biased because when you're working in an organization, जहाँ पे जो है ना, people view you as a mentor or as somebody senior or somebody that's working well for the organization. उसके साथ साथ आपके साथ employees ऐसे भी होते हैं that are totally willing to cut you down and show you like literally wanting to kill you or kick you out of the organization. So I think 360 feedback system is the worst, I think. आयशा आयशा इसी से तो पता चलता है ना। अब आप अगर 360 का आप कर रहे हैं, 3 लोगों ने बहुत अच्छा उसका जो है वो अप्रेजल किया है, और एक अगर इतना नेगेटिव आ रहा है, तो देन वो आप इवैल्यूएट करते हैं भाई इसको क्या मसला है इससे। नहीं रेहाना, अगर आपकी बात आपने ऑपोजिट बताना भी तो ली थोड़ी जा होता है सकती लोगों है ना। को, नहीं रेहाना, कॉन्फिडेंशियलिटी आई मैनेज थिंक करनी नहीं होती है। सर, जिसके पास वो फीडबैक जा रहा है वो देखेगा ना, 3 ने बहुत अच्छा दिया है, एक को क्या मसला है, किसको नहीं मसला है। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि एक बहुत अच्छा दे और 3 बहुत बुरा दे, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो सोचे कि, और ज्यादा हाँ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी यही है विद एन ऑर्गेनाइजेशंस के वो जो है फॉर पीपल टू ग्रो, वो डेफिनेटली दे वुड नेवर लाइक द अदर पर्सन टू ग्रो। तो अच्छा ज्यादा देखिए, 360 में जरूरी नहीं है। देखिए मैं व्हेन आई वाज इन जियो, वहां पे 360 डिग्री से होता था फीडबैक ना, और मेरी इवैल्यूएशन किस से हो रही है मुझे नहीं मालूम होता था। तो ये तो उससे भी वर्स्ट आई थिंक। So personally I think 360 मैं अपनी feedback सर्विसेज बिल्कुल ही पाकिस्तान में नहीं यूज होना चाहिए। नहीं, मैं अपनी सर्विसेज सबको ऑनेस्टली दे रही हूँ, ठीक है, फेयर तरीके से दे रही हूँ, तो क्यों जो है वो कोई इस तरह से एवेलुएट करेगा। हाँ, कोई एक हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे खुद नहीं मालूम होता था कि मेरे पीयर्स में से किसके पास मेरा जो है वो इन्होंने भेजा है फीडबैक के लिए। ये जिसको हलवा नहीं ना बना कर देती थी उसको नहीं भेजती थी फॉर्म। लेकिन ये कि मजा आता था सर, मेरे पास मेरे मैनेजर का भी आता था, और उसके बाद प्रॉपर हम लोग उसको जो है वो उसकी 360 प्रेजेंटेशन degree बनती थी is a good system, but it's a very lengthy system. The main issue.
सर लेंदी तो नहीं है, आपका एक टाइम पीरियड है, उसी में आपको करना है। ये जो बाकी हम लोग अप्रेजल करते हैं उसमें भी देखें, मैनेजर्स को हम अप्रेजल फॉर्म भेजते हैं, वो 2-2 महीने रखते हैं अपने पास। टाइम नहीं है, टाइम नहीं इसमें है, एक फिल बंदे कब को करें, दिया टाइम नहीं है। आपने, you are giving time to one person and in 360 degree let's say at least 4-5 persons. Imagine उनका सबका रिजल्ट आएगा तो फिर रिजल्ट कंपाइल होगा. It's going to take a lot of time. वो लेकिन वो सर देखिए, अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पूरा सिस्टम है उसमें तो हो जाएगा, छोटी में नहीं होगा, वहां बहुत प्रॉब्लम होगा। और फिर रेहाना जो जो रिजल्ट आएगा वो भी बहुत अनसर्टेन होगा आपके लिए, Exactly. यू नो। तो दिस इज व्हाट आई मीन कि आप एक तो चलें वेट जी, भी अभी ना अभी करें, ऊपर से thank आप you very अनसर्टेनिटी much. को भी एम्ब्रेस करें। Thanks for your input. Let's take सही। input from Kurutulan now and Sarosha then. Kurutulan, what do you say? Which system you like most? I like the second one and the third one. So you are going to implement hybrid system, Yes, I would like to implement that. and why? Why? Because I think कि दो systems से जो है वो ज़्यादा अच्छी evaluation होगी. How? How? कैसे explain करूँ? आप लोग इमेजिन करें आपने टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन देनी है, टॉप मैनेजमेंट आपसे सवाल पूछेगी तो आप लोग यही कहेंगे, मुश्किल हो जाएगा ना। तो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे जो है ना किसी मुश्किल में पड़े, इसलिए कहता हूँ कि इधर ही बता दो जो बताना है। या आप लोग चाहते हैं मैं अपने बच्चों को मुश्किल में डाल दूं? मुश्किल में डालेंगे ही तो सीखेंगे ना। सर हम अपने मैनेजमेंट के पास जब लेकर जाएंगे अपने 5 सबऑर्डिनेट्स का, जिसके अंदर हमने ये बिहेवियर एंड गोल बेस किया होगा, उसमें हम बता सकेंगे ना ये 5 लोग हैं, 5 में से इनकी आप देखें रेटिंग और इनके गोल्स मीट हुए, इनकी रेटिंग और इनके गोल्स देखें मीट नहीं हुए, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इनकी नहीं है। आपके पास कोई सॉलिड रीजन तो होगा, जस्टिफाई तो कर सकेंगे उन बेसिस पे। ओके जी, फारूक साहब, व्हाट डू यू से? मैं 2 ग्रुप्स बना रहा हूँ, आप लोग आपस में फैसला करें, डिस्कशन करें, बहस करें, मुझे जवाब दें। 10 मिनट है हम लोगों के पास। आई एम ब्रेकिंग इनटू 2 ग्रुप्स, ओके?